میاں صاحب کو آج پتا چل گیا کہ احتساب کیا ہوتا ہے. یہ تو ابتدا ہے, ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کی تنقید. بولے میاں صاحب آپ بھول گئے کہ ہمارا احتساب کیسا کیا تھا. جمہوریت کی قدر نواز شریف کو ہے نہ ہی کپتان کو. 1999 میں نواز شریف کو ایٹمی دھماکوں کی سزا دی گئی. اب سی پیک سے معاشی دھماکہ کرنے پر وزیر اعظم کے خلاف سازش کی جا رہی ہے. وزیر ریلوے کی ٹویٹر پیغام نے نئی بحث چھیڑ دی. کہتے ہیں کہ عالمی طاقتوں کا یہ کھیل پرانا ہے, اس بار کٹ پتلیاں نئی ہیں. 6 روز سے بھوکا ہوں. جیل میں بدترین تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. رات کو بیرک میں سانپ بچھو چھوڑے جاتے ہیں. رکن قومی اسمبلی جمشید دستی نے پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں شکایتوں کے انبار لگا دیے. رکھا ہے بچھو ہے وہاں پہ, اور وہاں پہ آپ دیکھ لیں چوہے میں نے کھائے ہیں. رات میں 6 دن سے بھوکا ہوں, وہ میرے بخود کھانے. عدالت نے جمشید دستی کو 3 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا. جمشید دستی کی حمایت میں کپتان بھی میدان میں آ گئے. بولے کہ شریفوں کی سفاکیت شرمناک ہے. شریف خاندان سیاسی گاڈ فادر ضیاء الحق کے ورثے کو زندہ رکھے ہے. ببلو کی پیشی کے موقع پر ان کے چیلے آنسو بہاتے دکھائی دیتے ہیں. پشاور میں کہیں نیا پاکستان نظر نہیں آیا. بلین ٹریز دکھائی دیے, نہ ہی کہیں پل, سڑکیں اور ڈیمز نظر آئے. انصاف دینے والی بس کہاں گئی؟ آن لائن FIR کا کیا بنا؟ مریم اورنگزیب کے کپتان کے ہوم گراؤنڈ پر تابڑ توڑ باؤنسرز. کہا احتساب کمیشن کو تالا لگا کر کرپٹ لوگوں کو دائیں بائیں کھڑا کر لیا گیا. احتساب کمیشن کو KTK کے اندر تالا لگا کر اور کرپشن کے شہنشاہوں کو اپنے دائیں اور بائیں کھڑے کر کر احتساب کی بات کرتے ہیں. کمال کرتے ہیں. نیب کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل امجد ریٹائرڈ کی پیناما GIT کے سامنے پیشی. بیان ریکارڈ کرا دیا. حدیبیہ پیپر مل سے متعلق سوالات پوچھے گئے. GIT نے وزیر اعظم کی صاحبزادی مریم نواز کو 5 جولائی کو طلب کر رکھا ہے. کراچی میں بارش کا ڈے اینڈ نائٹ میچ. بادلوں کی جم کر دھواں دار بیٹنگ. سورج کلین بولڈ. شہر میں فر چلنے والی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا. دوسرے روز بھی ابر کرم برسنے پر شہری خوشی سے سرشار. منچلوں کا خوب ہلا گلا, موج مستیاں. کراچی میں مونسون کی پہلی بارش. بلند و بانگ انتظامی دعووں, وعدوں اور یقین دہانیوں کو بہا لے گئی. جگہ جگہ کچرے کے انبار اور ابلتے گٹر عوام کے لیے عذاب بن گئے. جا بجا کھدی سڑکیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں. پنجاب چورنگی پر زیر تعمیر انڈر پاس میں 2 بچے ڈوب کر جاں بحق. ناقص انتظامات پر شہری برہم. پانی بھرا ہوا ہے سب جگہ. یہ ہمارا کاروبار ہے, لیکن کھول کے بیٹھے میں کسٹمر کہاں سے آئے گا؟ یہاں پر مین ہول کی صفائی نہیں, اسی کے اوپر ڈامر کر کے اس کے اوپر روڈ بنا دیا. وہ مین ہول جو ہے بند کر دیا. ڈپٹی میئر ارشد وہرا سب اچھا کی رپورٹ دینے لگے. بولے کہ صورتحال پچھلے برسوں کی نسبت بہت بہتر ہے. سینٹرل کے وہ علاقے شاید آپ کو یاد ہوں گے کہ گاڑیاں جو ہے ڈوب جاتی تھی, فیملیز اس میں کئی فیملیز جاں بحق ہوئی ہیں. تو وہ صورتحال نہیں ہے. صورتحال کمپیریٹیولی اگر پچھلے سالوں سے دیکھیں تو بہتر ہے. اسلام آباد, لاہور, ملتان, گلگت بلتستان, کوئٹہ سمیت مختلف شہروں میں تیز ہواؤں اور کالی گھٹاؤں کے ساتھ چھما چھم بارش. بالائی پنجاب اور پختونخوا میں آسمان سے برستے موتیوں نے موسم کر دیا اوسم. مرجھائے چہرے کھل اٹھے. شہریوں کے پارکوں اور تفریحی مقامات پر ڈیرے. مری میں ڈولی لفٹ گہری کھائی میں جا گری. 11 افراد جاں بحق. علاقہ مکینوں کے مطابق لفٹ اوور لوڈنگ کی وجہ سے گری. قصوروار ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. 8 بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی, اس نے 13 بندے بٹھائے. بالکل غیر قانونی ہے. اور اسی کے ساتھ ایک نیچے بھی آڑو کاس کے مقام پر لفٹ ہے, وہ بھی غیر قانونی ہے.
वज़ीर आज़म का जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। सानह अहमदपुर शर्किया के मजीद 17 जख्मी दम तोड़ गए। दिलखराश वाक़ये में जिंदगी की बाजी हारने वालों की तादाद 180 तक जा पहुंची। वाक़ये में गफलत बरतने पर मोटरवे पुलिस के 5 अहलकार और अफसरान मुअत्तल, 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील। पाराचनार खुदकुश धमाकों के मुतासिरीन का धरना 7वें रोज भी जारी। शहदा के लवाहिकीन ने वजीर आजम की जानिब से 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान मुस्तरद कर दिया। वजीर आजम, आर्मी चीफ, वजीर दाखिला या गवर्नर पख्तूनख्वा के आने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब की CMH पेशावर में जख्मियों की अयादत। कोयटा में ट्रैफिक पुलिस एहलकार को रोंदने का मामला। गिरफ्तार रुकन असेंबली मजीद अचकजई 7 रोजा रिमांड पर पुलिस के हवाले। मजीद अचकजई पर 2009 में शहरी के अगवा का मुकदमा भी सामने आ गया। जाबहक पुलिस एहलकार के अहल खाना ने मुलजिम से सुलह का इम्कान मुस्तरद कर दिया। नहीं, हुकूमत के बलूचिस्तान के तरफ से तो नहीं हुआ है, पर पंजाब के लोगों ने किया हुआ है रब्ता हम लोग साथ। PSL स्पॉट फिक्सिंग केस। खालिद लतीफ के वकील ने PCB के किरदार पर उंगलियां उठा दी। कहते हैं कि बोर्ड को बुकी का इल्म था तो प्लेयर्स को आगाह क्यों नहीं किया गया। एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल के सरबराह की अहलियत से मुतालिक खालिद लतीफ की दरखास्त पर फैसला महफूज। 1-2 रोज में सुनाए जाने का इम्कान। और डोनाल्ड ट्रंप की अमरीकी सदर बनने के बाद भी फ्लर्ट करने की आदत खत्म नहीं हुई। खातून रिपोर्टर की मुस्कुराहट देखकर तारीफ किए बिना नहीं रह सके। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 9 बजे के साथ मैं हूँ आसमा इकबाल और मैं हूँ अरबाब जहांगीर। हमारे आज के बुलेटिन के अहम मौज़ूआत हैं ये। में से बिजली पैदा हुई हो किसी भी प्रोजेक्ट के जरिए, इमरान खान साहब उसकी तो बात करें। इस सब के अलावा जमशेद दस्ती की कैद से दुहाइयां और जरदारी की हुकूमत पर तनकीद भी आपसे शेयर करेंगे, लेकिन सबसे पहले टॉप स्टोरी। और हमारी आज की टॉप स्टोरी है पाराचनार से, जहां बम धमाकों के खिलाफ इलाका मकीनों का धरना 7वें रोज भी जारी है। वज़ीर आज़म की ऐलान करदा इमदाद मुतासिरीन ने मुस्तरद कर दी है। पाराचनार बम धमाकों के खिलाफ धरना 7वें रोज में दाखिल हो गया। पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर के सामने शौदा पार्क में धरने के शुरका ने वजीर आजम की जानिब से ऐलान करदा इमदाद को मुस्तरद कर दिया। शुरका ने इजाफी इमदाद का मुतालबा किया है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अमीर मकाम ने पेशावर में धमाके के जख्मियों की आयादत की। उनका कहना था कि इस मामले में सियासत न की जाए। उन्होंने फिर इस अज़म का इजहार किया कि हम मुल्क के लिए पहले भी दिए सेक्रीफाइसेस और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी रहेंगे। और मैं कहता हूँ कि इस पर कोई सियासत चमकाने और इसकी कोई ज़रूरत नहीं। ये हम सब का जंग है दहशतगर्दी के खिलाफ। धरने में शामिल सूबाई वजीर अरशद उमर जई का कहना था कि जनाजे उठा उठा कर थक गए हैं। अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो पेशावर को भी ब्लॉक कर देंगे। और नाज़रीन, वज़ीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने सानिहा पाराचनार के हवाले से तनकीद पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि हम पर तनकीद करने वाले बताएं वो खुद क्यों नहीं पाराचनार गए। पहाड़ों पर बने महलों में रहने वाले दूसरों पर उंगलियां न उठाएं। सोशल मीडिया के ज़रिए डिफरेंट मुखालफिन, सियासी मुखालफिन भी इस पर सियासत करें, बड़ी अफसोसनाक बात है। और मतलब ये ख़ुद तो पहाड़ों से नहीं उतरना, महलों में, खैर मैं उस सियासत में नहीं जाना चाहती, लेकिन वहाँ बैठ के वो वहाँ क्यों नहीं गए? भाई आप क्यों नहीं गए वहाँ? आप किधर है इस पूरे मामले में? आप लोग जो एक दूसरे के, एक उंगली आप किसी पर उठाते हैं, 3 आपके ऊपर उठती हैं। पाराचनार में दहशतगर्दी में जावहक और जख्मियों के अहल खाना और इलाका मकीनों का धरना जारी है। मुतासरीन से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद एहतजाजी कैंप पहुँच रहे हैं। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात हमें बताएंगी कुरम एजेंसी के एंट्री पॉइंट से हमारी रिपोर्टर फरजाना अली।
पाड़ा चनार में होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ 7वें रोज भी मुतासरीन का धरना जारी है। मुतासरीन के अहले खाना से यकजहती के लिए मुख्तलिफ तबकाए फिक्र और सियासी पार्टियों के अफराद भी पाड़ा चनार पहुँच रहे हैं। ताहम जिन्हें आना चाहिए वो आ नहीं रहे और जो जाना चाहते हैं उनके जाने पर पाबंदी है। आगे नहीं जाने दे रहे। हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे यहाँ पर गुजारे, लेकिन इस पॉइंट से आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं मिली। हम धरने को कवर करना चाह रहे थे, पाड़ा चनार जाना चाह रहे थे, लेकिन हमें इस पॉइंट से आगे नहीं जाने दिया गया। कुर्रम एजेंसी के एंट्री पॉइंट छपरी चेक पोस्ट की बंदिश की वजह से सैकड़ों गाड़ियां फंस कर रह गईं, जिसकी वजह से शोदा के रिश्तेदार भी पाड़ा चनार ना पहुंच सके। मेरा भांजा भी था, मेरा दामाद भी था। शादी नहीं हुई, ईद की बाद 4 दिन 5 दिन बाद शादी की प्रोग्राम थी। अब वो समझ लो मैंने बारात ले आया कराची से बंजी के लिए। वहाँ पे वो सारा मेरे बंदे, हमारे बहन, मेरा भाई सब इंतज़ार कर रहे। अभी फ़ोन पे फ़ोन आ रहा है, बैटरी भी डाउन हो गया, 1 घंटा 1.5 घंटा हो गया, अब इधर हम बैठे हुए हैं। सिक्योरिटी की सूरत हाल यकीनन कुछ इक़दामात का तकाजा करती है, ताहम बरवक्त इक़दामात किसी हद तक मुतासरीन के जख्मों पर मरहम रखने में मुआवन साबित हो सकते हैं, अगर हो सके तो। फरजाना अली, आज न्यूज़, कुर्रम एजेंसी, छपरी चेक पोस्ट। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का सानह पाड़ा चनार के खिलाफ इस्लामाबाद में 6ठे रोज़ भी एहतजाज जारी है। सियासी और मजहबी जमातों के रहनुमाओं ने भी धरना कैंप में शिरकत करके इजहार यकजहती किया। मुकर्ररीन का कहना था कि पाड़ा चनार के लोगों को दानिस्ता तौर पर रियासती जबर का शिकार बनाया जा रहा है। मुतालबात की मंजूरी तक धरना जारी रखने का ऐलान भी किया गया है। सानह पाड़ा चनार के खिलाफ MWM ने नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी कैंप लगाया। मुजाहिरीन से इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमाओं ने शिरकत की। सेंटर फरहतुल्लाह बाबर का कहना था हुकूमत पाड़ा चनार को एक जजीरा बनाना चाहती है। मियां इफ्तिखार हुसैन ने मुतासिरीन को फौरी इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया। अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त करने के बजाय दूसरों पे इल्जाम लगाते हो, ये कहाँ का इंसाफ है? खुदा के लिए हम सबको, कोई भी शहीद इस वतन में होता है तो हमारा बेटा है, पाकिस्तानी भाई है हमारा, हम सबको उसके लिए उठना चाहिए। अगर हम इन मजलूमों के लिए निकलेंगे तो दहशतगर्द मायूस होंगे। साहबजादा फजल करीम और नईमुल हक ने हुक्मरानों के रवैये को मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती के खिलाफ करार दिया। मुस्लिम इत्तेहाद को जो तोड़ने की कोशिशें जारी हैं, हम सब का फर्ज है पाकिस्तान में कि हम इसके खिलाफ सीना तान कर खड़े हो जाएं। नेशनल इलेक्शन प्लान के वो तमाम नुकात जिसके ऊपर हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी ने अमल करना था, हमारी हुकूमत ने अमल करना था, उसे दानिस्ता तौर पर फेल कर दिया गया। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन ने मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज का सिलसिला जारी रखने का ऐलान किया। आपको अपडेट करेंगे सानिहा अहमदपुर शर्किया से मुतालिक, जिसमें जाँ बहक अफराद की तादाद 180 तक जा पहुंची है। ऑयल टैंकर हादसे की इंक्वायरी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है और हकाइक छुपाने के इल्जाम में मोटरवे पुलिस के 5 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। बहावलपुर के इलाके अहमदपुर शर्किया में जाँ बहक अफराद की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। मुल्तान और लाहौर में हादसे के मजीद जख्मियों ने दम तोड़ दिया, जबकि अब भी 94 अफराद मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज हैं। विक्टोरिया अस्पताल बहावलपुर में 28, CMH बहावलपुर में 2, अहमदपुर शर्किया अस्पताल में 14, नश्तर अस्पताल मुल्तान में 32, जबकि जिना अस्पताल लाहौर में 18 मरीज जेर इलाज हैं। महकमा सेहत पंजाब के मुताबिक विक्टोरिया अस्पताल में 9, CMH बहावलपुर में 10, नश्तर अस्पताल मुल्तान में 32, जबकि जिना अस्पताल लाहौर में 4 जख्मियों ने आज दम तोड़ा। ऑयल टैंकर आने की इंक्वायरी के लिए वज़ीर आला पंजाब ने 4 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी है, जबकि मोटरवे पुलिस ने इंक्वायरी के बाद हकायक को छुपाने की कोशिश के इल्जाम में 5 अफसरान को मुअत्तल कर दिया है। दूसरी जानिब फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म महमूद अब्बास ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ को फ़ोन करके सहने पर अफसोस का इजहार किया। रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को सरगोदा की सेशन अदालत में पेश किया गया। अपनी पेशी के मौके पर जमशेद दस्ती पुलिस तशद्दुद के खिलाफ फट पड़े। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि जेल में तशद्दुद किया जा रहा है। चीफ जस्टिस नोटिस लें और उन्हें रिहा करवाएं।
शेख साहब, आपको अपना वक्त याद है तो मैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को कहता हूँ जमहूरी दौर है, ये मुशर्रफ दौर में नहीं है। सो मोटो ले मुझे बुलाएं, मेरा कोई कसूर नहीं है। मैं रुकन कौमी असम्बली जमशेद दस्ती को सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान से सरगोदा में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश किया गया। इस मौका पर जमशेद दस्ती मीडिया के सामने फट पड़े। जमशेद दस्ती का कहना था कि उन्हें जागीरदारों के खिलाफ खड़ा होने की सजा दी जा रही है। मेरी बहन को तीसरे स्टेज पे कैंसर है, वालदा बीमार पड़ी है, 2 हल्कों से MNA हूँ, मेरे ऊपर झूठे केसेस से खाली। अब मैं जेल से निकला, मुझे पकड़ लिया। इतना तशद्दुद किया हुआ है, इतना तशद्दुद किया हुआ है कि मेरी पूरी तरीन हालत है। मैं जागीरदारों के खिलाफ खड़ा हूँ, मुझे घसीट घसीट के मार रहे हैं। जमशेद दस्ती ने इल्जाम लगाया कि पुलिस हिरासत में उन्हें बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। वो कई दिन से भूखे हैं और उन्हें सोने नहीं दिया जा रहा। उनका कहना था कि रात को उनकी बैरक में बिच्छू और सांप छोड़े जा रहे हैं। मुझे सेल में रखा है, बिच्छू है वहाँ पे, और वहाँ पे आप देख लें चूहे मैंने मारे हैं। रात में 6 दिन से भूखा हूँ, वो मेरे ऊपर कुछ खाना नहीं है। मेरी हालत को 2 हल्कों से मैंने। अदालत ने जमशेद दस्ती को 3 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया, जबकि मुकदमे की समाअत 3 जुलाई को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में होगी। जमशेद दस्ती को होम डिपार्टमेंट के हुक्म पर सेंट्रल जेल डेरा गाजी खान से सरगोदा लाया गया था। और नाज़रीन, जमशेद दस्ती के खुद पर मुबैना पुलिस तशद्दुद के इन इल्ज़ामात के बाद वज़ीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह ने नोटिस ले लिया है और IG जेल खाना जात को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की हिदायत कर दी है। सरगोदा की अदालत में पेशी पर जमशेद दस्ती ने खुद पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। राना सनाउल्लाह ने मुबैना पुलिस तशद्दुद की इंक्वायरी के लिए IG जेल खाना जात को हिदायत कर दी है। वज़ीर कानून ने जमशेद दस्ती के तिब्बी मुआयने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की भी हिदायत की और इस मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर 24 घंटे में वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को ये रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की गई है। तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी को हुकूमत की गॉड फादर पॉलिसियों का हिस्सा करार दिया है। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा हुकूमत अपने सियासी गॉड फादर ज़ियाउल हक की पॉलिसियों पर चल रही है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने एक ट्वीट में शरीफ बिरादरान को फाशिस्ट करार दिया। उनका कहना था कि शरीफ बिरादरान अपने सियासी गॉडफादर ज़ियाउल हक की पॉलिसियों को आगे बढ़ा रहे हैं और जमशेद दस्ती की गिरफ्तारी इसका एक सबूत है। उन्होंने कहा कि शरीफ बिरादरान का ये अमल काबिल नफरत है। इमरान खान ने ट्वीट के साथ जमशेद दस्ती की फुटेज भी अपलोड की है। वेलकम बैक। कुछ मजीद खबरें कर लेते हैं और बारिश की कुछ बात हो जाए। बारिश के बाइस मुल्क के बेशतर मकामात पर मौसम इंतहाई खुशगवार रहा। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहाँ रिमझिम का सिलसिला अभी भी वक्फे वक्फे से जारी है। शदीद गर्मी की लहर के बाद बिलाखिर अब्र करम मेहरबान हो गया। मुल्क के बेशतर मकामात पर काली घटाओं का राज रहा। बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, मीरपुर खास डिवीजन और कश्मीर में अक्सर मकामात पर कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश हुई। पंजाब में 2 रोज के दौरान वक्फे वक्फे से होने वाली बारिशों ने गर्मी के जोर को खत्म कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मौसम खुशगवार हो गया। कराची के अवाम की दुआएं भी रंग ले आईं और गुज़िश्ता रोज शुरू होने वाला बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी वक्फे वक्फे से जारी रहा। मुल्तान, जोब और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक सबसे ज्यादा बारिश लाहौर में 54 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कोयटा, चमन और तुर्बत समेत बलूचिस्तान के अक्सर मकामात पर मौसम गर्म और खुश्क रहा। सबसे ज्यादा गर्मी तुर्बत में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड की गई। नाज़रीन, मुल्क के मुख्तलिफ अजला में बारिशों के बाद जहाँ नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं, वहीं मुख्तलिफ हादिसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। ट्रेनों और फ्लाइट्स का शेड्यूल भी मुतासिर हुआ है। मानसून बारिशों से जहां मौसम खुशगवार हुआ, वहीं छतें और दीवारें गिरने और दीगर मुख्तलिफ हादसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। सिंध में कनकोट में तंगमानी नहर में 60 फुट चौड़ा शिगाफ पड़ने से मुतअद्दिद देहात ज़ेर आब आ गए, जिससे चावल की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा। राजनपुर के पहाड़ी सिलसिले कोहे सुलेमान पर दोबारा मूसलाधार बारिश से सैलाबी रेले से ज़रई अराजी ज़ेर आब आ गई।
दीन और चित्राल के दरमियान जियारत के मुकाम पर सड़क बरसाती रैले में बह गई और दर्जनों सैयाह फंस गए। चित्राल, तीरबाला और मुजाफाती इलाकों में मूसलाधार बारिश के बायस नदी नालों में तुग़यानी का खतरा है। आवाम को मोहतात रहने की हिदायत की गई है। पंजाब के बेशतर अजला में बारिशों के बायस नशेबी इलाकों में पानी जमा है। पंजाब हुकूमत ने शदीद बारिशों के बायस मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वाले अफराद की रवायकीन के लिए माली इमदाद 5 लाख से बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दी है। शहबाज शरीफ ने अपना हेलीकॉप्टर सूबाई काबीना कमेटी बराए फ्लड के हवाले कर दिया है। वज़ीर-ए-आला ने महकमा मौसमियात के लिए बरवक्त रिडार न खरीदने पर भी बरहमी का इजहार करते हुए जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दिया है। कराची में दूसरे रोज भी मानसून की बारिश का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ हादसात में 2 बच्चों समेत 8 अफराद जान की बाजी हार गए। के इलेक्ट्रिक ने भी आवाम को सूली पर लटकाया हुआ है। कई इलाके ऐसे हैं जहां गुज़िश्ता रोज से गायब बिजली पूरी तरह बहाल नहीं हो पाई थी कि दोपहर की बारिश से 160 फीडर्स दोबारा ट्रिप कर गए। दूसरी तरफ महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई की है। कराची में दूसरे रोज भी अब्र रहमत बरसती रही। एक तरफ बारिश से गर्मी की शिद्दत कम होने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया, तो दूसरी तरफ सड़कों और गलियों में पानी जमा होने पर शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। डिप्टी मेयर ने मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और मानसून बारिशों से मुताल्लिक इजलास में शिरकत भी की। अरशद वोरा ने इजलास में पुराने वादे और दावे फिर दोहराए। तो हम अपने तौर पर कोशिश पूरी कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% मुतमईन है, लेकिन हम अपने काम से मुतमईन हैं। कुछ जगहों पे इश्यूज हैं। मुझे चीफ मिनिस्टर साहब का फोन आया था और उन्होंने मुझे जो है अश्योरेंस दी और उन्हीं की अश्योरेंस पे हमने बहुत सारी जगहों पे मेजर काम भी शुरू कर दिए। एमडी वाटर बोर्ड भी दौरा करने निकले। हुक्काम के दौरे अपनी जगह, लेकिन सड़कों पर पानी और गंदगी जूं की तू मौजूद है। शहर भर में बारिश के दौरान मुख्तलिफ हादसात में 8 अफराद जाँ बाक हो गए। पंजाब चौरंगी पर ज़ेरे तामीर अंडरपास में बरसाती पानी जमा हो गया, जहां 2 बच्चे डूबकर जाँ बाक हो गए, जिनकी लाशें निकाल ली गई हैं। इससे पहले औरंगी टाउन, केमाड़ी और लियारी में करंट लगने से 6 अफराद जान की बाजी हार गए। बारिश के बायस के इलेक्ट्रिक के 160 से ज्यादा फीडर ट्रिप कर गए, जिसके बायस मीमनगोट, मलीर, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी, गुलिस्तानी जौहर, न्यू कराची और ओल्ड सिटी एरिया समेत कई और इलाके बिजली से महरूम हो गए। शहर में बारिश से तरक्याती कामों की कलई भी खुलने लगी है। यूनिवर्सिटी रोड पर मौसमियात के करीब सड़क पर गड्ढे पड़ने लगे। गोलीमार में 9 तामीरशुदा अंडरपास के साथ सड़क धंस गई। उधर महकमा मौसमियात ने शहर में मजीद बारिश की पेशगोई भी की है। काशिफ फारूकी, आज न्यूज़, कराची। हम बात कर रहे हैं कराची की, जहां अब भी वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कुछ इलाकों में आहिस्ता बारिश है और कुछ इलाकों में इंतहाई तेज बारिश भी हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम यह है नाज़रीन कि बहुत से इलाके ऐसे हैं कराची के जहां बिजली इस वक्त मौजूद नहीं। इसी बारे में मजीद बात करते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे एहसन अब्बासी से। एहसन, सबसे पहले तो ये बताएं कराची में क्या इस वक्त भी बारिश हो रही है? चूंकि कुछ देर पहले तो बड़ी तेज बारिश हो रही थी। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम अपने दफ्तर की छत पर खड़े होकर जो है ये वेदर अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि तमाम निज़ाम जो है इस मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो धरम भरम हो गया है। लेकिन शहरी बहुत खुश है। रमज़ान के बाद एक दफ़ा फिर समोसों और पकौड़ों का सीज़न आ गया है। दुकानों पर रश है, लोग होटलों पर बैठ के चाय पी रहे हैं। जगह जगह जो है वो ट्रैफिक जाम है। शहर भर जो है वो तारीखी में डूबा हुआ है, जिसके बायस काफ़ी शहरियों को मुश्किलात का सामना है। ट्रैफिक जैम है, पुरसाने हाल सड़कों का कोई नहीं था, जिसके बायस गढ़ों में जो है वो पानी भर गया है। मैं आपको कैमरे के थ्रू जो है वो मनाजिर तो नहीं दिखा सकता अपने पीछे के, लेकिन अपना आंखों देखा हाल ज़रूर बता सकता हूँ। शदीद ट्रैफिक जैम है गुरुमंदिर पे और मुख्तलिफ मकामात से रिपोर्ट्स आ रही हैं। बारिश के बायस जो है मूसलाधार बारिश के बायस जो है वो शदीद ट्रैफिक जैम है। तमाम गली सड़कों मोहल्लों में जो है वो पानी भर गया है, तुग़यानी नदियों में आ गई है। एमरजेंसी अलर्ट भी जो है वो जारी किया गया है। इंतज़ामिया की जानिब से जो है कोई
कोई ऐसी कार्रवाई होती हुई शहरों में नज़र नहीं आ रही है सड़कों पे कि पानी जो है वो उसको जो रसाई उसकी मुमकिन बना सके, लेकिन शहरी जो है वो काफ़ी खुश हैं इस मूसलाधार बारिश के बाद। जी तो ऐसा नहीं बताएगा, ये जो हादसात भी कुछ रिपोर्ट हुए हैं, एक जगह 2 बच्चे भी डूब गए, एक स्विमिंग पूल बन गया था, ये पानी की निकासी का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा? मुतल्लिका इदारे कहाँ गायब हैं? कोई कोशिश की आपने राब्ता करने की? जी बिल्कुल, पंजाब चौरंगी के पास जो अंडर बाईपास बन रहा था वहाँ पर हिफाजती दीवार ना होने के बायस जो है वो गड्ढे में पानी भर गया था, जिसके बायस दिल्ली कॉलोनी और अतराफ के रिहायशी जो बच्चे थे वो बारिश के बायस जो है वो निकले। तो उस दौरान जो है ये एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें लोग जो हैं वो मुतासर हुए हैं, 2 बच्चे भी डूबे हैं, जबकि कई अफराद जो है वो इस वाक़े में करंट लगने से भी रिपोर्ट हुए हैं कि जहाँ बहक हुए हैं। लाइट जो है इस वक्त कहा जा सकता है कि 80% शहर कराची में जो है वो लाइट मौजूद नहीं है। जी 80% कराची इस वक्त बिजली से भी महरूम है, जबकि आवाम भी मुश्किलात का शिकार है। एहसन अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कराची में बारिश का सिलसिला जारी है और साथ ही साथ डकैतियों का सिलसिला भी, क्योंकि बारिश की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा है। बहुत से ऐसे इलाके हैं जहां ट्रैफिक जैम है और इसी ट्रैफिक जैम का फायदा उठाते दिखाई देते हैं डाकू। और ये वो डाकू है जो डकैती के बाद फरार हो रहा था, लेकिन मूसलाधार बारिश की जद में आ गया। आप देख सकते हैं कि इसकी मोटरसाइकिल जो है वो बारिश के पानी की वजह से खराब हो गई। आज न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ फारूकी से इस बारे में मजीद जानेंगे। काशिफ, ये वाक़या कैसे पेश आया? डाकू फिर हद पे चढ़ गया पुलिस के और शहरियों के? जी अरबाब, कराची में जो स्ट्रीट क्राइम का सिलसिला है वो कभी भी जो है वो रुकता हुआ नजर नहीं आता, चाहे गर्मी हो या मौसम कैसा भी हो। बारिश में भी ये शरीफाबाद में आज दोपहर ये वाकया पेश आया। ये अकेला डाकू था जो कि मुसल्ला था। पहले उसने लूट मार की दुकानों से, ठेले वालों से, और उसके बाद तनहा ही वो अपनी मोटरसाइकिल पर भागने की कोशिश कर रहा था कि बारिश के पानी में उसकी मोटरसाइकिल जो है वो बंद हो गई, जिसके बाद शहरियों ने उस पर पथराव शुरू कर दिया। जिसके बाद उसने न सिर्फ पहले हवाई फायरिंग की बल्कि शहरियों पर स्ट्रेट फायरिंग भी की, लेकिन वो खुशकिस्मती से गोली किसी को नहीं लगी। ताहम इस वाकये के बाद ये डाकू जो है वो मोटरसाइकिल छोड़कर पैदल फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। पानी में गिरा भी, लेकिन उसके बावजूद भी जो है इसको पकड़ने की कोशिश शहरियों की नाकाम रही और ये मोटरसाइकिल जो है वो फायरिंग करता हुआ फरार हो गया। मोटरसाइकिल पुलिस ने तहवील में ले ली है और पुलिस का ये दावा है कि मोटरसाइकिल की मदद से और इस फुटेज की मदद से जो है उस डाकू को गिरफ्तार किया जाएगा। जी तो काशिफ, पहले तो हम देखते थे कि 2 मोटरसाइकिलों पर 4 लोग या एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग डकैतियां किया करते थे। अब अकेला ही डाकू लूट मार कर रहा है क्या? वहां पर कोई करीबी थाना मौजूद नहीं था? पुलिस एहलकार आसपास के इलाके में मौजूद नहीं थे? जी बिल्कुल अरबाब, आप ठीक कह रहे हैं कि पहले 2 कम से कम डाकू या मुसल्ला अफराद होते थे, लेकिन अब डाकू इतने दीदा दिलेर हो गए हैं कि वो अकेले ही जो है वो लूट मार करने निकल पड़ते हैं। बारिश ने जो है इस डाकू को आ लिया, वरना ये जो है अपनी वारदात करके बआसानी फरार हो जाता। लेकिन ये अब भी जो है वो फरार होने में कामयाब हुआ। शहरियों की जो इसको पथराव की और उसको पकड़ने की कोशिश थी वो कामयाब न हो सकी, क्योंकि ये मुसल्ला था और मुसलसल फायरिंग कर रहा था। लिहाजा दूर से शहरी जो है इस पर पथराव करते, लेकिन ये डाकू जो है वो अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो गया। तो काशिफ, अब ये फुटेज तो मंजर आम पर आ गई है, वाज़े तौर पर डाकू को देखा जा सकता है। इस फुटेज के आने के बाद अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई की है? कोई वहां पर चेकिंग शुरू की गई? इस डाकू को ढूंढने की कोशिश की गई? जी बिल्कुल, इलाका पुलिस का ये कहना है कि इसकी मोटरसाइकिल जो तहवील में ली गई है उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए जो है इस डाकू की तलाश की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि इसको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। लेकिन क्योंकि डाकू को भी ये बात मालूम है कि उसकी मोटरसाइकिल जो है वो छोड़ के भागा है, वो पुलिस की तहवील में है, तो उसको पुलिस तलाश कर रही होगी, तो इतना आसान नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ये कह रही है कि इस फुटेज की मदद से और इस मोटरसाइकिल की मदद से जो है वो डाकू को गिरफ्तार करने में कदर आसानी होगी और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, डकैती के बाद फरार होने वाला ये डाकू, जिसकी मोटरसाइकिल बंद हो गई थी, लेकिन मोटरसाइकिल बंद होने के बाद फायरिंग का सिलसिला डाकू की जानिब से शुरू किया गया और फिर वो पैदल ही वहां से फरार होने में कामयाब भी हो गया। बहुत शुक्रिया काशिफ फारूकी, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। कराची की सूरत हाल तो आपने जानी, जहां बारिश के साथ साथ डकैतियों का सिलसिला भी जारी है। रुक कर लेते हैं लाहौर का, जहां बारिश से मौसम इंतहाई खुशगवार हो चुका है। बच्चों की बात करें तो उनकी मौज मस्ती ने पार्कों की रौनक बढ़ा दी है। इसी पर रिपोर्ट कर रही हैं उमा भट्ट। बादलों के डेरे, कभी हल्की और कभी तेज बारिश लाहौर समेत पंजाब भर में मौसम के दिलफरेब अंदाज आंखों को खूब भा रहे हैं। बदले मौसम में शहरियों की तफरीह का सिलसिला भी अरूज पर पहुंच गया है। लाहौर में ईद की तातीलात खत्म होने के बावजूद बच्चों की मौज मस्ती नहीं रुक सकी और फरमाइशों का सिलसिला भी जारी है। कभी पार्क्स तो कभी फूड पॉइंट्स पर एंजॉयमेंट किया जा रहा है। आज मौसम बहुत ठंडा था तो हमने कहा आज हम जना पार्क जाएंगे और सारा दिन हम यहीं पे एंजॉय करेंगे और उसके बाद बाकी पार्क्स में बहुत मजा करेंगे। मेरा बहुत सारे झूले लिए हैं, मेरा अभी तक दिल नहीं भरा, मेरा दिल चाहता है और झूले लूं।
बच्चे तो खूब तैयारी करके सुबह सवेरे से ही तफरीही मकामात पर डेरे डाले हुए हैं। वालिदैन भी ठंडी हवाओं और आसमान पर छाई काली घटाओं के साथ बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट से खूब खुश हैं। मौसम घर में रह के भी इंजॉय करें और आज तो खैर मौसम बहुत अच्छा है। बच्चों को जितना पढ़ाना चाहिए पढ़ा ले। यही 2 दिन है छुट्टियों के बच्चों के, उसके बाद ये स्कूल चले जाएंगे, हम अपने कारोबार पे चले जाएंगे। सियालकोट, हाफिजाबाद और गुजरांवाला समेत सूबे के मुख्तलिफ अजला में बादलों के डेरे हैं। तहम महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 36 घंटों तक पंजाब के मुख्तलिफ मकामात पर मौसम के बदले तेवर जारी रहेंगे। हुमा भट्ट, आज न्यूज़, लाहौर। मुल्क भर में ही बारिशों का सिलसिला तो जारी है। मौसम की आइंदा क्या सूरत हाल रहेगी, इसी बारे में बात करेंगे चीफ मेट्रोलॉजिस्ट मोहम्मद रियाज अहमद से। रियाज साहब, ये बताइएगा कि बारिशों का सिलसिला मजीद कब तक जारी रहेगा और क्या इसमें मजीद शिद्दत भी आ सकती है? जी, अभी तो ये दिन 2 दिन मजीद रहेगी इसकी शिद्दत के साथ, खासकर पंजाब में, कश्मीर के जो इलाके हैं और कुछ केपी के जो गिलगित हज़ारा कोस्तान डिवीजन है, साथ सिंध के जो अंदरूनी सिंध के जो एरियाज है, इंक्लूडिंग जो साउथ ईस्ट सिंध है, उसमें अभी 24 घंटे मजीद रहेगी और उसके बाद पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा 1-8 दिन आगे एक्सटेंड हो, लेकिन ज़्यादा उम्मीद ये एक्सपेक्टेशन यही है कि 24-26 घंटों के बाद तकरीबन ये वीक हो जाएगा और उसके बाद कोई नया सिलसिला आगे आ सकता है, लेकिन गैप आ जाएगा थोड़ी बहुत, फिर लोकल किस्म की एक्टिविटी होगी। ठीक है मोहम्मद रियाज साहब, बहुत शुक्रिया गुफ्तगू करने के लिए। और अफसोसनाक वाकया पेश आया मरी के नवाही इलाके में, जहां डोली लिफ्ट टूटकर बुलंदी से नीचे जा गिरी। 11 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1 खातून और 3 बच्चे भी शामिल हैं। वजीर आजम ने सानहे पर अफसोस का इजहार किया है। मरी के इलाके बनवाड़ी गांव के मकीन मरकजी शहरा तक आने के लिए ये डोली नुमा लिफ्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 8 अफराद के बैठने की गुंजाइश होती है और ये निजी शोबे के तहत चलाई जाती है। अहले इलाका के मुताबिक लिफ्ट ऑपरेटर ने रकम के लालच में आकर 8 अफराद की गुंजाइश वाली लिफ्ट में 13 अफराद को सवार करा दिया, जिसके नतीजे में डोली लिफ्ट इंतहाई बुलंदी से नीचे जा गिरी। जो भी कसूरवार है उसको सजा मिलनी चाहिए। 8 बंदों के बैठने की गुंजाइश थी, उसने 13 बंदे बिठाए। बिल्कुल गैर कानूनी है और इसी के साथ एक नीचे भी आड़ूकास के मुकाम पर लिफ्ट है, वो भी गैर कानूनी है बिल्कुल। जो है ना, अगर आज इधर वाक़या हो सकता है तो कल उधर भी हो सकता है वाक़या। सानहे के बाद इमदादी टीमों और मकामी लोगों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। लोगों का कहना है कि ऐसी डोली लिफ्ट पहाड़ी इलाकों वाली आबादियों में आम है, जिनमें हिफाजती इकदाम यकीनी बनाने के लिए हुकूमती सतह पर कोई चेक नहीं। सिर्फ ये इंतजामिया की गफलत की वजह से हुआ है सारा कुछ। अगर इंतजामिया इस पे प्रॉपर एक्शन लेती तो आज मेरा नहीं ख्याल कि ये इस तरह का इतना बड़ा वाकया पेश आता। हुकूमत से पूछना चाहते हैं कि ये इंसानों की जान से खेलने के लिए किसने NOC जारी किया है। इस सानहे में इस्लामाबाद के इलाके मिलपुर के 3 रिहायशी आरिफ, शब्बीर और साइमा, मरी के नवाही इलाके सामली के 5 अफराद इखलाक, रोहान, शाजल, सोहेब और मुजाहिद शामिल हैं। दीगर मरने वालों में खज्जट का वासिफ, छत्तर का अब्दुल मजीद, ननन कोट का